अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड एरिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीडिएशन का लेकर आया हूँ जी। तो सबसे पहले हम इस मीडिएशन में इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आप लोग, मेरा उम्मीद है कि पहला लेक्चर नेगोशिएशन पे सुन चुके हैं। उसके अंदर नेगोशिएशन का जो मेथड है, एक बात याद रखिएगा कि वो हमेशा डिस्प्यूटेड पार्टीज आपस में नेगोशिएट करती हैं, बारगेनिंग करती हैं और मामला आपस में सॉर्ट आउट कर लेती हैं जो भी डिस्प्यूट है। इसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और पार्टीज जो हैं वो डिस्प्यूट उस थर्ड पार्टी के एफर्ट से, न्यूट्रल जो थर्ड पर्सन या पार्टी इन्वॉल्व होती उसकी एफर्ट से एक किसी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। तो अब जो वो थर्ड पार्टी है न्यूट्रल, दैट इज कॉल्ड मीडिएटर, हु हेल्प्स डिस्प्यूटिंग पार्टीज रीच अ म्यूचुअली acceptable agreement. Unlike litigation, mediation is typically less formal, more flexible and focuses on facilitating dialogue and understanding between the parties. Next हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिएशन में, mediation is a voluntary and confidential process in which a neutral third party assists the disputants in reaching a negotiated settlement. The mediator does not impose a solution but facilitates communication and encourages the parties to explore their interests and options. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसके अंदर कोई सोल्यूशन इम्पोज नहीं किया जाएगा, कोई डिसीजन नहीं आएगा मीडिएटर की तरफ से, जस्ट फैसिलिटेशन होगी टूवर्ड्स रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोग जानते हैं कि ये इट हैज़ एंशियंट रूल्स लाइक चाइना, इंडिया एंड ग्रीस में। इन मॉडर्न टाइम्स मीडिएशन हैज़ इवॉल्व्ड एज अ की कंपोनेंट ऑफ एडीआर, गेनिंग prominence as an effective way to resolve dispute without resorting to. Next, इसके principles हैं. What are the principles of mediation? So first of all, the most important principle is voluntariness. Mediation is a voluntary process, meaning that parties participate by choice and are free to withdraw at any time. This principle fosters a cooperative environment and encourages honest dialogue. Then confidentiality is the second important principle. Confidentiality is the cornerstone of mediation. Communications during the mediation process are generally protected from disclosure in subsequent legal proceedings, which promotes openness and trust. थर्ड आ जाता है न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। मीडिएटर की क्वालिफिकेशन में भी ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि वो न्यूट्रल होगा और इम्पार्शियल होगा, और that all the parties are treated fairly and that the process is balanced. The mediator does not take sides or have an interest in the outcome. Next, self-determination है। Parties retain control over the outcome of that mediation. The mediator facilitates the process but does not make decisions for the parties. This empowerment leads to more satisfactory and sustainable resolution. फिर प्रोसेस क्या है मीडिएशन का, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेपरेशन। बिफोर द मीडिएशन सेशन, द मीडिएटर टिपिकली मीट्स विद द पार्टीज सेपरेटली टू अंडरस्टैंड द इश्यूज, assess the potential for resolution and explain the process. Preparation also involves setting ground rules and logistical arrangements. फिर आपके पास सेकंड जो प्रोसेस का स्टेप है, ओपनिंग सेशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्कशंस करें इनिशियल और इश्यूज उसमें मार्क करें कि क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स क्या हैं। तो द मीडिएशन प्रोसेस बिगिंस विद एन ओपनिंग सेशन where the mediator outlines the process, establishes the rules, and allows each party to present their perspective on the dispute. This stage sets the tone for collaborative problem solving. फिर joint discussions होंगी
During joint discussion, the parties engage in direct communication facilitated by the mediator. The mediator helps to clarify issues, explore interest, and identify areas of agreement or disagreement. Joint discussions में पार्टीज अपना अपना मौक़िफ़ एक दूसरे के सामने भी रखेंगी. ऐसी मीटिंग्स अरेंज कौन करेगा? ऑब्वियसली मीडिएटर अरेंज करेगा. फिर प्राइवेट कॉक्सेस, उसमें आपने देखना है द मीडिएटर मे होल्ड प्राइवेट मीटिंग्स with each party to discuss sensitive issues, explore settlement options, and better understand the underlying interest. These sessions are confidential and can help break impasses. अब प्राइवेट डिस्कशंस होती हैं, कुछ प्राइवेट रिजर्वेशंस होती हैं पार्टीज़ की, जो कि मीडिएटर पे वो ट्रस्ट करते हो उससे शेयर करती हैं. फिर वो अपने हिसाब से दूसरी पार्टी को कन्वे करता है. इस तरह से एक ट्रस्ट की इन्वायरमेंट बिल्ड होती है. नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो नेगोशिएशन और बार्गेनिंग का आता है. द मीडिएटर असिस्ट द पार्टीज इन नेगोशिएटिंग अ सेटलमेंट. दिस मे इन्वॉल्व ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्यूशंस, मेकिंग कंसेशंस एंड फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स. द मीडिएटर्स रोल इज टू कीप द प्रोसेस फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव. देन नेक्स्ट स्टेप इज एग्रीमेंट एंड क्लोजर. जब आपकी आपस में अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, बार्गेनिंग्स और कंसेशन, कुछ छूट एक दूसरे को पार्टीज दे देंगी, जो भी अल्टीमेट गोल निकलेगा. इफ एन एग्रीमेंट इज रीच, द मीडिएटर हेल्प्स ड्राफ्ट द सेटलमेंट टर्म्स. द पार्टीज रिव्यू एंड साइन द एग्रीमेंट विच मे बी लीगली बाइंडिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. द मीडिएशन कंक्लूड्स विद अ सेंस ऑफ रेजोल्यूशन एंड क्लोजर. बेनिफिट्स क्या हैं मीडिएशन के? नंबर 1, कॉस्ट इफेक्टिव है. फिर टाइम एफिशिएंसी है. कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है कि आमतौर पर जितना भी लीगल मैटर्स लिटिगेशन के ज़रिए, कोर्ट प्रोसीजर के ज़रिए हल होते हैं, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, लॉयर्स के एक्सपेंसेस हैं, कोर्ट की फीसिस हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस होगा. फिर टाइम एफिशिएंसी भी है. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. एडीआर के तमाम मोड में आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, फ्लेक्सिबल रूल्स होंगे. आप अपनी मर्जी से सिटिंग्स रख सकते हैं. कोर्ट्स में तो फिर कोर्ट की अवेलेबिलिटी के ऊपर आपको डेट्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे आपके रूल्स और डेट्स वगैरह आपके अपनी अरेंजमेंट के मुताबिक हो सकते हैं. फिर मीटिंग्स कर भी कहीं भी सकते हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके मीडिएशन के थ्रू जो गोल्स अचीव करेंगे, सेटलमेंट राइज करेंगे, उसके अंदर रिलेशनशिप आपके कायम रहेंगे. एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, बड़े खुश असलूबी से आपके मैटर्स सॉल्व हो जाएंगे. फिर कंट्रोल ओवर द आउटकम क्या है? ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि पार्टीज अपनी मर्जी का आउटकम जब तक ना आ जाए तब तक डिस्कशंस पे ही रहें, और जैसे ही उनकी मर्जी का सोल्यूशन सामने आता है फिर वो उस तरफ मूव कर. नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ मीडिएशंस क्या हैं? ये नंबर 1 के नॉट सूटेबल फॉर ऑल डिस्प्यूट्स. कुछ बहुत ग्रेव नेचर के होते हैं कि जिसमें कि क्रिमिनली ऐसा कोई क्राइम्स कमिट किए जाते हैं कि वो केस एक तरह से आप कह लें कि मीडिएशन या एडीआर के थ्रू सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाहिए, जिसमें हीनियस नेचर के ऑफेंसेस हैं. ऑब्वियसली टेररिज्म आ सकती है, नारकोटिक्स आ सकते हैं, तो ये उन मैटर्स में, या बहुत कोई लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व हो किसी भी जगह पर, तो वहाँ पे फिर मीडिएशन के ज़रिए वो हो नहीं सकता सॉल्व. फिर लैक ऑफ फॉर्मल डिस्कवरी, जिस तरह से आपके अदालत के अंदर हर चीज़ ओपनली बतानी पड़ती है, तो एविडेंस भी सारा कुछ लाना पड़ता है. एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, उस प्रोसीजर के फॉलो करके आपने ये सब कुछ करना है. ये मीडिएशन में ये चीज़ भी नहीं होती. फिर पोटेंशियल फॉर नॉन कंप्लायंस है कि आप कोर्ट की जजमेंट जब होती है तो फिर उसके जजमेंट को कोर्ट एग्जीक्यूट भी करवाती है डिग्री को, लेकिन इस सूरत हाल में पार्टी चाहे तो मान ले चाहे तो ना माने, तो वो ऑब्वियस ये आप देख सकते हैं कि सिंस मीडिएशन एग्रीमेंट्स में नॉट बी
enforceable in the same way as court judgment, there is a risk that parties may not comply with the terms of his settlement. Next है risk of coercion. यहाँ पे प्रेशर डल सकता है एक पार्टी का दूसरी पार्टी के ऊपर कुछ बैलेंस लेने के लिए या अपने आप को कम नुकसान में रखने के लिए, ज़्यादा नुकसान ना हो, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के बताने से, मीडिएटर के इन्वॉल्व होने से शायद उसको वो अंडर प्रेशर रह के डिसीजन ले जाए, ये भी। फिर एप्लीकेशन ऑफ मीडिएशन, आपको निगोशिएशन की भी एप्लीकेशन बताई थी, मीडिएशन की भी है कि फैमिली मीडिएशन क्या है कि दो भाइयों में, बहन भाई में, मियाँ बीवी में कोई डिस्प्यूट्स आ जाते हैं तो घर के बड़े बैठ के सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो फैमिली मैटर्स में बड़ा ज़्यादा मीडिएशन का रोल है। फिर कमर्शियल मैटर में मीडिएशंस होती हैं कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, वर्क प्लेस मीडिएशंस होती हैं, जहाँ कमर्शियल एग्रीमेंट हो वहाँ कमर्शियल डिस्प्यूट्स भी होंगे। फिर वो प्रेफरेंस की जाती है कि मीडिएशन के थ्रू सॉल्व कर लिए जाएं। वर्क प्लेस पे अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो वर्क प्लेस पे मीडिएशन कहलाएगी। एम्प्लॉयर बॉस के दरमियान और एम्प्लॉय के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो ऐसे डिस्प्यूट्स के तो भी मीडिएशन एप्लीकेबल है। कम्युनिटी मीडिएशन क्या होती है कि अगर आपको कोई, आपकी कम्युनिटी को कोई इशू है, जनरली कोई पब्लिक को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को कोई प्रॉब्लम है, इवन कि आप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ को प्रॉब्लम है, तो इकट्ठी होके कम्युनिटी जाती है अपने इश्यूज रिजॉल्व करवाने, तो बीच में मीडिएटर पढ़ के सॉर्ट आउट करवा देता है मामला। इन्वायरमेंटल मीडिएशन है, इन्वायरमेंटल लॉ से मुताबिक डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनमें भी मीडिएशन हो सकती है। फिर इंटरनेशनल मीडिएशंस, ऑब्वियसली 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ अगर डिफरेंट कंट्रीज़ की होंगी मीडिएशन होगा। फिर लीगल सिस्टम में मीडिएशन का क्या रोल है, वो यूनाइटेड स्टेट लीगल सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर प्रॉपरली मेंशन भी है कि यूनाइटेड लीगल सिस्टम इनकॉर्पोरेट्स मीडिएशन एट वेरियस लेवल्स फ्रॉम ऑल क्लेम्स कोर्ट्स टू कॉम्प्लेक्स सिविल लिटिगेशंस। Many jurisdictions require mediation before proceeding to trial in certain cases. Then mediation in other jurisdictions, वो भी आप देख सकते हैं। कोर्ट कनेक्टेड मीडिएशन प्रोग्राम्स होते हैं। Many courts offer mediation programs as an alternative to traditional litigation. फिर रोल ऑफ मीडिएटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि मीडिएटर का रोल क्या होता है, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस क्या होंगी मीडिएटर की। इफेक्टिव मीडिएटर पोजेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये आप इसकी आगे से सेपरेट सब हेडिंग बना सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, डेफिनेटली न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, पेशेंस होने चाहिए एंड द एबिलिटी टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। दे मस्ट आल्सो बी स्किल्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नेगोशिएटिंग टेक्निक्स। Ethical considerations, mediator must adhere to ethical standards including confidentiality, impartiality and transparency. They must avoid conflict of interest and ensure that process is fair to all the parties. Training and certification, अगर कहीं पे कोई लीगल एरिया जो है वो कहता है कि मिसाल के तौर पर आज लाहौर में लॉ बन जाए, पंजाब में बन जाए कि जो भी मीडिएशन करवाएगा उसकी क्वालिफिकेशन होगी, उसे प्रॉपरली पंजाब गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो ऐसी कंडीशन भी लग सकती है क्वालिफिकेशन पे, तो वो कंडीशन भी फुलफिल करनी है। नेक्स्ट, फ्यूचर मीडिएशन का क्या है कि ट्रेंड्स क्या है इन मीडिएशन में। द फ्यूचर ऑफ मीडिएशन लुक्स प्रॉमिसिंग विद ट्रेंड्स इंडिकेटिंग इंक्रीजिंग यूज इन वेरियस फील्ड्स सच एन ऑनलाइन मीडिएशन, हाइब्रिड मॉडल्स कंबाइनिंग मीडिएशन विद अदर ADR methods and greater integration of mediation in legal system. Then challenges and opportunities. Now, despite its growth, mediation faces challenges including public awareness, acceptance, and ensuring access to quality mediation services. Opportunities lie in expanding mediation to new areas and enhancing mediator training and standards. Now we'll come to the case laws. Mediation के जो important case laws हैं उसमें एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन का है। इसमें भी कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट था पार्टीज़ के दरमियान और हेल्ड किया गया था। गाइडलाइंस बताई गई थी सिविल कोर्ट्स को, कैन ट्रांसफर मैटर टू ADR मैकेनिज्म इंक्लूडिंग मीडिएशन। सेकंड आपके पास केस ला है स्लीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, 2003 में ये केस हुआ था। इसके अंदर भी CPC में एक अमेंडमेंट्स कुछ इंट्रोड्यूस कराई गई थी सेक्शन 89 में,
जिसमें ADR के मोड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, जहाँ पे अपहेल्ड की थी सुप्रीम कोर्ट ने के गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 89. द कोर्ट स्ट्रेस दैट मीडिएशन शुड बी वन ऑफ द प्रेफर्ड मेथड फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स. आपके पास कंक्लूजन है कि हर क्वेश्चन के आंसर में आपने लिखना होता है. मीडिएशन स्टैंड्स आउट एज अ वैल्यूएबल टूल इन द लैंडस्केप ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑफरिंग अ कॉस्ट इफेक्टिव, flexible and collaborative approach to resolving conflicts. While it is not without limitations, its benefits make it an attractive option for many types of disputes. As mediation continues to evolve and expand into new areas, it holds the potential to play an even greater role in promoting justice, peace and understanding in societies worldwide. ये आप सब लोगों ने टॉपिक बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है. मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान करे. आमीन.